All right, Isaiah 33, यशायाह 33 अध्याय verse 6. वचन 6। The fear of the Lord प्रभु का भय will be your treasure. वो तेरा खजाना होगा। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ everybody seated over here, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा हुआ है, the fear of God प्रभु का भय shall be your वो treasure. आपका खजाना हो। The fear of the Lord प्रभु का भय is the treasure. वो खजाना है। So what do you do with the treasure? तो खजाने के साथ आप क्या करते हो? Don't lose the fear of God. प्रभु के भय को खोना मत। Treasure is not to be lost. खजाना जो है खोने के लिए नहीं होता है। Treasure is to be treasured. खजाना खजाने के समान सुरक्षित रखने के लिए होता है। Do not allow the enemy to steal it. शत्रु को उसे चुराने मत दो। John 10:10 says, यूहन्ना 10 अध्याय वचन 10 The कहता thief है, comes चोर आता है to steal, चोरी करने के लिए, kill, हत्या करने, destroy. नाश करने। Your 10 lakh rupees goes, no problem. आपके But, 10 लाख चले गए तो भी कोई समस्या but नहीं, the fear of God, लेकिन प्रभु का भय it should never be stolen from वो you. आपसे कभी चुराया नहीं जाना चाहिए। Then it says, फिर आगे कहता है, learn the fear of God. प्रभु का भय सीखो। Last Sunday I told you, पिछले रविवार को मैंने आपको बताया था, God will teach you. प्रभु आपको सिखाएंगे, He will teach वो you आपको सिखाएंगे so that you will learn to fear the Lord ताकि आप प्रभु का भय मानना सीखोगे all the days of your life. आपके जीवन के हर एक दिन, And you will teach your और children आप आपके बच्चों को भी सिखाओगे the fear of God. प्रभु का भय मानना। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ every one of us, हम में से हर एक व्यक्ति we will learn to fear God हम प्रभु का भय मानना सीखेंगे and we will grow in it. और हम उसमें बढ़ेंगे। And finally I say, और अंत में मैं कहता हूँ, let's live in the fear of God. आइए प्रभु के भय में जीते हैं। So I want to give you 10 blessings of the fear of God. प्रभु के भय के 10 आशीष मैं आपको देना चाहता हूँ अभी। Psalm 112 भजन संहिता 112 अध्याय and verse 1. वचन 1। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Great blessings महान आशीषें belong to those who fear the Lord. उनके हैं जो प्रभु का भय मानते हैं। Okay, now let's look at the blessing. आइए आशीषों को देखते हैं अभी। Verse 2. वचन 2। Their children उनके बच्चे will be given power on the earth. उनको पृथ्वी पर सामर्थ दिया जाएगा। Blessing number 1. पहला आशीष, All the parents, सारे माता पिता those who walk in the fear of जो God, प्रभु के भय में चलते हैं, get ready. तैयार हो जाओ। Your children आपके बच्चे will be वो successful सफल होंगे। Amen। because of you. आपके कारण Your children आपके बच्चे will be वो successful सफल होंगे because you क्योंकि आप walk in the fear of प्रभु God. के भय में चलते हो। My son, मेरा बेटा Johan, योहान he will be वो successful सफल होगा because his क्योंकि parents, उसके माता पिता they walk in the fear of वो God. प्रभु के भय में चलते हैं। Your children आपके बच्चे will be वो successful सफल होंगे because you walk in the fear of क्योंकि आप God. प्रभु के भय में चलते हो। Psalm 112 verse 3. भजन संहिता 112 में 3। Their family will be very rich. उनका परिवार बहुत धनी होगा। It's a promise from God. ये प्रभु की ओर से वादा है। That means if you need 4 roti, इसका मतलब यदि आपको 4 रोटी चाहिए, God will give you 8 प्रभु आपको 8 देंगे so that you will be full. ताकि आप खा के तृप्त हो जाओ You will make others और full. दूसरों को भी तृप्त करोगे। Number 2, दूसरा नंबर, you will be greatly blessed. आप महानता से आशीष पाओगे। Number 3. तीसरा। Yeah, number 3. तीसरा नंबर, Yeah. Your family आपका परिवार will be very rich. बहुत धनी होगा। Okay, let me explain. Rich means what? मुझे समझाने दो धनी का मतलब क्या है। There's no lack. कोई कमी नहीं है, You can become a blessing. आप आशीष का कारण बन सकते हो। I'm not saying karodpati. मैं ऐसा नहीं कह रहा करोड़पति, I'm saying no lack. मैं ऐसा कह रहा हूँ कमी नहीं है, No lack. कमी नहीं है। Yeah, you will be a blessing. आप आशीष का कारण बनोगे। Can I hear an amen? क्या मैं आमीन सुन सकता हूँ? Okay. Let's go to that verse 3. वचन 3 में वापस जाएंगे। Their family will be very rich. उनके परिवार बहुत धनी होंगे And their goodness, और उनकी भलाई, your goodness, आपकी भलाई, your children's आपके goodness, बच्चों की भलाई it will continue forever. वो सदा सर्वदा तक बनी रहेगी। Okay. Number 4. चौथा नंबर, Your goodness आपकी भलाई will endure. वो बनी रहेगी। Okay. Anybody knows Psalm 23 किसी को भजन संहिता 23 पता है क्या? and verse 6? वचन 6, Surely. निश्चित। Anybody understand surely means? किसी को निश्चित मतलब समझता है क्या? उसमें कोई शंका नहीं है. आमेन। There's no doubt. उसमें कोई शंका नहीं है, There's no doubt. उसमें कोई शंका नहीं है। Anybody believes that goodness and mercy will follow you all the days of your life? कोई विश्वास करता है भलाई और करुणा आपके जीवन के हर एक दिन आपका पीछा करेगी? Now I want you to give the Lord a अभी hand. मैं चाहता हूँ प्रभु के लिए आप जोरदार Yeah. तालियां बजाएं।
Psalm 112, verse 4. भजन संहिता 112 में 4। Very nice verse. बहुत सुंदर वचन। A light will shine in the dark for those who are good. जो लोग भले हैं उनके लिए जो है अंधेरे में रोशनी चमकेगी। Number 5. 5वां नंबर, Light will shine in darkness for you. अंधेरे में आपके लिए रोशनी चमकेगी। Okay, now many meanings for this, इसके बहुत सारे अर्थ है, but I will tell you one special meaning. लेकिन एक खास अर्थ मैं आपको बताता हूँ। Light in the Bible means understanding. बाइबल में प्रकाश का मतलब समझ होना। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ the light of the word of God प्रभु के वचन का प्रकाश will fall on your life. वो आपके जीवन पर गिरेगा। Every confusion हर एक गड़बड़ी would be removed. निकाल दी जाएगी। Every stumbling हर एक गिरना लड़खड़ाकर will stop. वो रुक जाएगा। Clarity will come. स्पष्टता आएगी। You can see where to go. आप देख पाओगे कहाँ जाना है। Your mistakes will be less. आपकी गलतियां कम होंगी। Psalm 112, verse 8. भजन संहिता 112 अध्याय वचन 8। So the one who fears the Lord, तो जो प्रभु का भय मानता है they remain confident वो आत्मविश्वास से भरे रहते हैं and they don't fear. और वो डरते नहीं है। Any fear other than God's fear, प्रभु के भय के अलावा किसी भी प्रकार का डर it can be defeated वो हराया जा सकता है by the fear of God. प्रभु के भय के द्वारा। And what is he saying? और यहाँ पर वो क्या कह रहा है? They will be confident. वो आत्मविश्वास से भरे होंगे। Fear will not enter their heart. डर उनके हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। Why? क्यों? The fear of God is in their heart. क्योंकि प्रभु का भय उनके हृदय में है। Number 6. 6वां नंबर, All fear सारे डर other than the fear of God प्रभु के भय के अलावा stays out of your heart. वो आपके हृदय से बाहर रहेंगे। The fear of man, मनुष्य का डर, the fear of standing before people, talking to people, लोगों के सामने बात करके लोगों से बात करने का डर, the fear of dark, अंधेरे से अंधेरे का the डर, fear of height, ऊंचाई का डर, the fear of demons, दुष्टात्माओं का डर, the fear of future, भविष्य का डर, the fear of marriage, शादी का डर, all these fears, ये सारे डर I pray मैं प्रार्थना करता they हूँ will stay out. वो बाहर रहेंगे। I want you to write 2 words. मैं चाहता हूँ 2 शब्द आप लिखो। Uncertainty. अच्छा, कितने लोगों के दिमाग में ऐसा आता है क्या होने वाला है? यस, ओके, बाजू वाले को बोलना ये बहुत नॉर्मल है। ये बहुत नॉर्मल। अगर ये नहीं होता तू नॉर्मल नहीं है। Yes. समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। कुछ तो गलत है फिर। ओके, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? क्या होने वाला है? एंड गॉड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गॉड, ही विल नेवर टेल यू एवरीथिंग। और प्रभु बहुत दिलचस्पी भरे परमेश्वर है, सब कुछ आपको बताएंगे नहीं। गॉड विल नेवर टेल यू, प्रभु आपको नहीं बताएंगे, ही विल टेल यू वो आपको बताएंगे अ सिंपल वर्ड। एक आसान शब्द। यू नो व्हाट इज इट? पता है वो क्या है? ट्रस्ट मी। मुझ पर भरोसा कर। सो इज लाइफ अनसर्टेन? क्या जीवन अनिश्चित है? यस, हाँ, बट लेकिन इन दैट उसमें आई विल ट्रस्ट गॉड। मैं प्रभु पर भरोसा रखूंगा। व्हाई विल आई ट्रस्ट गॉड? मैं प्रभु पर भरोसा क्यों रखूंगा? बिकॉज़ ही नेवर चेंजेस। क्योंकि वो कभी बदलते नहीं है। God never changes. प्रभु कभी बदलते नहीं है। That's why I can trust God. इसलिए मैं प्रभु पर भरोसा कर No सकता हूँ। matter what happens, मैंने नहीं रखता जो कुछ क्यों ना हो जाए, I will trust the मैं मेरे Lord. प्रभु पर भरोसा करूंगा। That's why Job said, इसलिए अय्यूब ने कहा, even if God kills me, अगर प्रभु मुझे मार भी डाले I will still trust Him. तो भी मैं उन पर भरोसा करूंगा, Because I can trust His character. क्योंकि उनके चरित्र पर मैं भरोसा रख सकता हूँ। Yeah. Number 7. 7वां नंबर, Psalm 112, भजन संहिता 112 अध्याय verse 8. वचन 8। They remain confident वो आत्मविश्वास से भरे रहेंगे and without fear, और बिना डर के रहेंगे and they defeat their enemies. और अपने शत्रुओं को हराएंगे। Wow. Number 7. 7वां, You will defeat your enemies. आप आपके शत्रुओं को हराओगे। Some of you are walking, मान लो आप चल रहे हो and the fear of God is walking in front of you. और प्रभु का भय आपके सामने चल रहा है। You know what will happen to your enemies? पता है आपके शत्रुओं के साथ क्या होने वाला है? वो जैसा आया है ना, ये they came one way, वो एक दिशा से आए, but when they see the fear of God, लेकिन जब वो प्रभु के भय को देखते हैं ना, they will turn around वो उल्टा घूमेंगे and you will see their back only. और आप सिर्फ उनकी पीठ देख पाओगे। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ you are going to see a lot of the back of your enemy. आपके शत्रुओं के बहुत सारे शत्रुओं की पीठ आप देखोगे। They came with super plan to finish you, वो सुपर योजना बना के आए आपको खत्म करने की, but लेकिन actually the Bible says the terror of God. बाइबल कहती है प्रभु का डर। Exodus 23 verse 27. निर्गमन 23 में 27, I will send my fear मैं मेरा डर भेजूंगा before you. तेरे सामने। May this whole year परंतु ये पूरा साल
May the fear of God go in front of you. होने तो प्रभु का भय आपके आगे आगे जाए। And I will make your enemies, और तेरे शत्रुओं को मैं, all your enemies, तेरे all your, सारे शत्रुओं को I will make them turn मैं उनको उल्टा घुमाऊंगा and they will run और वो भागेंगे and you will see their और back. तू उनकी पीठ को देखेगा। Psalm 112 verse 9. भजन संहिता 112 में 9। They freely give to the poor. वो गरीबों को उदारता से देते हैं। The ones who have the fear of God, जिनके अंदर प्रभु का भय है they are givers. वो देने वाले लोग हैं। That means इसका अर्थ when they see a need, जब वो कोई जरूरत को देखते हैं they meet it. वो उसे पूरा करते हैं। They are a good Samaritan. वो अच्छे सामरी है। That means today, इसका अर्थ आज when you came from your home till here, जब आपके घर से आप यहाँ तक आए, you saw somebody in need. आपने किसी को तो जरूरत में देखा, What you did? आपने क्या किया? You should have done something. आपने कुछ करना चाहिए था। And people are not just in need of money. और लोगों को सिर्फ पैसों की जरूरत नहीं है, No, but they have a lot of needs. लेकिन बहुत सारी और जरूरतें So हैं। today when I and Pastor Tejal we came by lift. आज जब पास्टर तेजल और पास्टर विजय लिफ्ट से आए, Yeah. So in our building, this gentleman was cleaning the lift. हमारे बिल्डिंग में वो व्यक्ति जो है लिफ्ट साफ कर रहा था। So I asked him, "How are you?" तो मैंने उससे पूछा आप कैसे हो? So he was very nervous talking to me. तो बहुत नर्वस फील कर रहा था मुझसे बात करने के लिए। So I asked him a lot of good things. तो मैंने उससे बहुत सारी अच्छी चीजें पूछी, And then I left. फिर मैं वहां से गया। What did I do? मैंने क्या किया? I gave him some honor. मैंने उसको थोड़ा आदर दिया। मैं क्या कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा खुद के ऊपर से थोड़ा नजर उठा के थोड़ा बाजू में देखो ना. Is life about you? जीवन आपके बारे में नहीं, क्या वो आपके बारे में है? Jesus said, यीशु ने कहा, knowing me, मुझे जानना that's life. वही जीवन है। How Jesus would have, he is in a lift, what he would have done? यीशु अगर लिफ्ट में होते तो उन्होंने क्या किया होता? James said, याकूब ने कहा, you see somebody's shirt is torn, आप किसी का शर्ट फटा हुआ देखते हो what should you do? तो आपने क्या करना है? You should pray or what? आपने प्रार्थना करना है क्या? No, नहीं, give a shirt. उसे शर्ट दो। But I have only 4, pastor. लेकिन मेरे पास सिर्फ 4 है पास्टर, Let me share with you. मुझे आपके साथ बांटने दो। What you do to others, जो आप दूसरों के साथ करते हो it will come back to you. वो आपके पास लौट के आएगा। I didn't say, मैंने नहीं कहा, Jesus said. यीशु ने कहा। Yeah. I pray you will be a vessel whom God will use powerfully. मैं प्रार्थना करता हूँ आप ऐसे बर्तन होंगे जिनका प्रभु सामर्थ्यवान तरीके से इस्तेमाल करेंगे। Yeah. Number 9. 9वां नंबर, Yes, Psalm 112 verse 9. भजन संहिता 112 में 9। They freely give to the poor वो जो जरूरतमंदों को उदारता से देते हैं and their goodness will continue forever. और उनकी भलाई निरंतर बनी रहती है। They will be honored with victory. विजय के साथ उनका आदर होगा। Wow. Number 9. 9वां नंबर, God will honor you with victory. प्रभु आपका विजय के साथ आदर करेंगे। Yeah. Have you heard this? आपने ये सुना है क्या? The Lord prepares the table for me प्रभु मेरे लिए मेज तैयार करते हैं in front of my मेरे enemies. शत्रुओं के सामने। My cup overflows. मेरा प्याला उमड़ता है। And like God spoke to Joshua और जैसे प्रभु ने यहोशू से कहा and he said, और कहा, this day इस दिन I will exalt you. मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, This day इस दिन I will lift you. मैं तुझे ऊंचा करूंगा। Have you heard Psalm 3:3 say, आपने सुना है भजन संहिता 3:3 कहता है, the Lord is the lifter of my head. प्रभु मेरे सिर को ऊंचा करने वाले हैं। I declare over मैं you, आपके ऊपर घोषणा करता हूँ, may your shame go. होने तो आपकी शर्म निकल जाए। May you be that thing called unknown in your life. Unknown. होने तो आपके जीवन में आप ऐसे हो जहां पर अनजाना है। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ you shall be known. आप जाने जाओ। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ you will be lifted by God. प्रभु आपको ऊंचा उठाए। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ your head which is hanging in shame, आपका सिर जो शर्म से झुका है it would be lifted. वो ऊंचा किया जाए। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ in your honor, आपके आदर में don't be arrogant. अभिमानी मत हो जाना। And let me say this also. मुझे ये भी कहने दो, For some of us, हम में से कुछ लोगों के लिए our honor will be our test. हमारा आदर ही हमारी परीक्षा होगी। And I pray और मैं प्रार्थना करता God हूँ will prepare your heart प्रभु आपके हृदय को तैयार करे, so that when God honors you, ताकि जब प्रभु आपका आदर करेंगे, God exalts you, प्रभु आपको ऊंचा उठाए, you will not be arrogant. आप अभिमानी न हो, You will be humble. आप नम्र रहो। Psalm 112 verse 10. भजन संहिता 112 में 10। The wicked become angry दुष्ट जो है क्रोधित होते हैं when they see this. जब वो इस बात को देखते हैं। The wicked
will become angry when they see this. दुष्ट जन जो है क्रोधित होंगे जब वो इस बात को देखेंगे। What will they see? वो क्या देखेंगे? The 9 blessings of the fear of God in your life. प्रभु के भय मानने के 9 आशीष आपके जीवन में जब वो देखेंगे, They will do something with their teeth वो अपने दांतों से कुछ करेंगे, and then they will disappear. फिर वो वहां से निकल जाएंगे And they will never get what they wanted. और जो उनको चाहिए था उन्हें कभी नहीं मिलेगा वो। Ah. Number 10, beautiful. 10वां नंबर सुंदर। Beautiful statement. Number 10. 10वां वाक्य बहुत सुंदर है। Yeah. Your enemies, आपके शत्रु they will be वो disappointed. हताश होंगे And sometimes it can be even in your family. They are your enemies. They are just waiting when you will fall. और कभी कभी आपके परिवार में भी आपके शत्रु होंगे, वो रुके हुए तुम कब गिरते हो देखने के लिए। Yeah. But thank God, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, God will not allow you to fall. प्रभु आपको गिरने नहीं देंगे, You will stand. आप खड़े रहोगे, You will stand in the name of Jesus. आप यीशु के नाम में खड़े रहोगे। Psalm 17, वचन संहिता 17 verse 13. वचन 13। Okay, now this is a prayer. ये प्रार्थना है। यहाँ पर What is the prayer? प्रार्थना क्या है? God arise. हे प्रभु उठ खड़े हो जाओ। And what should you do? और आपने क्या करना है? Disappoint him. उसे हताश कर दो। This is prayer. ये प्रार्थना है And this is going to happen. और ये होने वाला है। Lord arise. हे प्रभु उठ खड़े हो जाओ, Disappoint my मेरे enemy. शत्रु को हताश कर दो और थोड़ा उठा और उसे पटक यीशु के और नाम थोड़ा में. उठा के उसे पटक दो यीशु के नाम में। When the word disappoint comes, जब ये हताश करने वाला शब्द आता है ना, that means उसका अर्थ है he had an expectation. उसकी कुछ अपेक्षा थी। What God is saying. प्रभु क्या कह रहे हैं? His expectation उसकी अपेक्षा for your life. तेरे जीवन के लिए जो है I will make it 0. उसे मैं शून्य कर दूंगा। And the expectation of God और परमेश्वर की अपेक्षा and your expectation और आपकी अपेक्षा will not come to an end. उसका अंत नहीं होगा, But लेकिन God will make it flourish प्रभु उसे फलदायी करेंगे in the name of Jesus. यीशु के नाम में। Deuteronomy 4:10 NLT. व्यवस्था विवरण 4 में 10 God is saying, प्रभु कह रहे हैं, I will teach you. मैं तुझे सिखाऊंगा। What is the Lord doing this morning? प्रभु इस सुबह क्या कर रहे हैं? Teaching you. आपको सिखा रहे हैं। Next word it says, अगला शब्द कहता है then. उसके बाद। जब आपको सिखाया जाएगा उसके बाद कुछ होने वाला है. आमीन। क्या होने वाला है? You will learn. आप सीखोगे, You will learn. आप सीखोगे। What will you learn? आप क्या सीखोगे? To fear the Lord. प्रभु का भय मानना। Next Sunday, अगले रविवार को when I talk to you, जब मैं आपसे बात करूंगा, you will actually understand why things are happening negatively. हकीकत में आप समझ जाओगे कि नकारात्मक चीजें क्यों हो रही है। Yeah. Then they will learn. तब वो सीख जाएंगे Yeah, to fear me. मेरा भय मानना। How long? कब How तक? long? As long as you live. जब तक तुम जिंदा हो तब तक। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ God will teach you. प्रभु आपको सिखाएंगे। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ you will learn. आप सीखोगे। I pray मैं प्रार्थना करता you हूँ will grow. आप बढ़ोगे। I pray मैं प्रार्थना करता the हूँ fear of God प्रभु का भय will be in your life वो आपके जीवन में होगा as long as you live. जब तक आप जिंदा हो तब तक। And then और तब you will teach your children. आप आपके बच्चों को भी सिखाओगे And your और children, आपके बच्चे they also वो भी will have the fear of उनके God अंदर प्रभु का भय होगा in their life उनके जीवनों में as long as they live. जब तक वो जिंदा है तब तक। So I pray तो मैं प्रार्थना करता हूँ in your home, आपके घरों में the love of God प्रभु का प्रेम and the fear of और God प्रभु का भय will be seen. वो दिखाई देगा। I pray मैं प्रार्थना करता in हूँ your soul आपके प्राण में an और atmosphere वातावरण हो of the love of प्रभु God के प्रेम का and the fear और of प्रभु God. के भय का। May God protect you. होने तो प्रभु आपकी सुरक्षा करे, May God help you. होने तो प्रभु आपकी मदद करे, May God strengthen you. होने तो प्रभु आपको ताकत से भरे, May the Lord lead you. होने तो प्रभु आपकी अगुवाई करे, May the Lord guide you. होने तो प्रभु आपको मार्गदर्शन दे, May the Lord be with you. होने तो प्रभु आपके साथ रहे, May your struggles become lesser and होने lesser. तो आपके संघर्ष कम और कम होते जाए, May your failures become less and less. होने तो आपकी असफलताएं कम और कम हो, May your children rise up to live with the Lord. होने तो आपके बच्चे उठ खड़े हो और प्रभु के साथ जीना शुरू करें, May the light over your child shine होने तो आपके बच्चों के ऊपर जो प्रकाश है वो चमके, as you keep walking with God. जैसे आप प्रभु के साथ चलते रहोगे, The brightness of your path will become brighter and brighter. आपके रास्ते का उजाला और चमकदार होगा।